ঠিক আছে, রেকর্ডিং চলছে। একটা 33 বছর মহিলা, ছোট ছোট দুটো বাচ্চা আছে, আর 2 ক্লাসে পড়ে একদম। আপনারা এইসব অফ করে দেন, মাইক অফ করে দেন, মাইক অফ করে দেন। এরকম করবেন না, মাইক আসবে, ওটা অফ করে দেন। রেমন দা আপনার মাইকটা বন্ধ করে দেন। আমার মাইক চালু আছে, অফ করে দেন। আমার মাইক হ্যাঁ, ওইটা অফ করে দেন, তাহলে ভালো হবে। হ্যাঁ, হয়ে গেছে। চলো মন্টু, আমারটাই করো। হয়ে গেছে, আমারটা অফ করা আছে। হ্যাঁ, করা আছে। आते ही एकदम से बहुत परेशान, इतने से लगेगा ना आपको, एकदम से कुछ छटपटा रहे इस तरह का। बोलছে पेशेंट मैंने बहुत इलाज कराया, ठीक नहीं हो। স্যার একটু বাংলায় বলবেন স্যার। হ্যাঁ বলছি, স্যার আমি অনেক অনেক ইলাজ করেছি, মানে কিন্তু ঠিক হচ্ছে না। হ্যাঁ, अब ঠিক नहीं हो रहा, তো এখন তো এইটা ঠিক হচ্ছে না, তাহলে তো আমি তো না ঠিক হলে তো আমি মারাই যাবো, এরকম যে আমার অসুবিধা হচ্ছে। হ্যাঁ, তো আমার তো মানে ডেথটা তো একদম নিশ্চয়ই আছে। আমার ছেলে, দুটো ছেলে তো একদম অনাথ হয়ে যাবে। স্যার আমাকে বাঁচায় নেন। কান্না শুরু করেছে। এখনো বলেনি যে কি হয়েছে, এই কথাটা বলে যাচ্ছে শুধু, স্যার আমার তো একদম বাচ্চা, আমার তো সেকেন্ড ম্যারেজ করে নিবে আমার মরার পর, তাহলে আমার বাচ্চা তো দেখার কেউ কেউ থাকবে না, ওকে নতুন মহিলাকে নিয়ে নিজে ব্যস্ত থাকবে, আমাকে বাঁচায় নেন, আমার বাচ্চা কে দেখবে, অনাথ হয়ে যাবে আমার বাচ্চা, এই কথাটা বারবার বলে যাচ্ছে। মানে এইটা যে আমার যে এই হয়েছে, এত চিন্তা, এত চিন্তা, ওইটা নিয়ে বলে যাচ্ছে যে আমি তো বাঁচবো না, যখন ও ঠিক হচ্ছে না, একটু ওষুধ চলছে, তো ডাক্তার দেখালাম ঠিক হচ্ছে না, তাহলে কি কি স্যার, আমি তো মারাই যাবো না এই অসুখটা নিয়ে। এখনো বুঝতেছি না কি আছে ওর অসুখটা। আমি বললাম ক্যা হুয়া, কি হয়েছে, তাহলে একটু কি বলে সাইনেস টিমি হয়ে বলছে, স্যার মুঝে ইউরিন, স্যার আমার ইউরিনের একটু সমস্যা আছে। আমি কি বলি, যদি আমি টয়লেট থেকে এসে যাই, পুরো ফুললি ক্লিন করে আসি আর বসে আছি, কেউ এরকম বলে দিল যে আমি টয়লেট যাচ্ছি, আমারও পেয়ে যাবে, আর আমাকে একদম দৌড়াই যেতে হবে, না গেলে তো আমার একদম অবস্থা, আমার কপালগুলো সব খারাপ হয়ে গেছে। বাস, আমি একদমই কন্ট্রোল করতে পারি না। আর মাঝে মাঝে এইসব কথা বলে বলে না খুব কাঁদছিল, খুব কাঁদতো। সবসময় এই মনটা একটু মাথায় ঢুকেই আছে যে আর আমি বাঁচবো না, আমাকে বাঁচাবে, আমার ছেলের ছেলেগুলো একদম অনাথ হয়ে যাবে, আর কান্না শুরু করে দেয়। बार-बार ये सब बोले, मुझे तुरंत ही जाना पड़ेगा वरना मेरे कपड़े गीले हो जाएंगे, আমার কাপড়টা ময়লা হয়ে যাবে। बच्चों के बारे में चिंता करके रोने लग जाती हूँ, बार-बार एक বাচ্চা, আমি তো বাঁচবো না স্যার, আমাকে বাঁচান, আমার বাচ্চা আছে, প্লিজ করে দেবে। আমার স্বামী তো সেকেন্ড ম্যারেজ করে নিবে, ঘরে বসে থাকবে, আমার বাচ্চাকে কে দেখবে, কেউ দেখার নেই, এইরকম কথা বলে। যে আমি বাঁচবো, চলে যাও, আমাকে বাঁচান। আর একটা পেশেন্ট মোটামুটি 65 67 year হবে, হ্যাঁ, লাংস ক্যান্সার হয়েছে। এর আমার কোনো সমস্যা নেই, শুধু বলে দিল বাস, যেতেই হবে, না গেলে তো শোনা যাবে না, এইরকম অবস্থা। স্কুলের টিচার ছিল, কোনোরকম মজাকে বলে দিত কি
ওই আসলো ইউনিট থেকে এরকম তো হয়। ওর মজা করে দিল, টিচার বলে দিল যে আচ্ছা আমি যাচ্ছি, এমনি করে বলে দিল কি পকেটটা চেক, এরকম বলে দিল টিচারটা চেক, ওরাই দেখে। আমি কোনো 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 দিন বলে যায় মহিলারা ফালতু কথা বলে, এরকম বলে যায় কেউ কেউ, কিন্তু আমি সব কথা লাগে, ঠিক আছে? ওইরকম রিপ্লাই করে যদি হবে না তাহলে বুঝতে পারবে। এরকম এটা কিন্তু খারাপ না। উনিও বললেন এইসব কথা, তুমি এইরকম বুঝবে না, এই রিপোর্টটা নিয়ে ফোন করে, ঠিক আছে? আর একটা লাঞ্চ করে 65 more than 65 হবে মজা, 70 হ্যাঁ। তাহলে 30-40 মিটার আছে রোড থেকে আমার কিনে, ওখান ওখান থেকে ধরে নিয়ে আসছে, উঠিয়ে নিয়ে আসছে, বুঝতে পারছিলাম না। হ্যাঁ, এসে বলছে না আমি মরতে চাই, আমি মরে যাব, আমি বাঁচবো না, আমি জীবিত থাকতে চাই না, আমি মরবো, আমার মরার ইচ্ছে আছে, মরার বাপ, এই কথাটা বলে দেয়, আর কিছু বলতে না। তাহলে আমি বললাম ঠিক আছে, ওকে বললাম আমি বসতে পারছিলাম না, এরকম অবস্থা। উঠিয়ে নিয়ে এসে করে করে রোড থেকে, আর জানি না, আমি বললাম ঠিক আছে, বসার জায়গা আছে বস, তাহলে বললাম আপনি শুয়ে যান, শুয়ে গেছে। আমি এখন নাই 31 গজ মুখে দিয়ে দিই শুয়ে শুয়ে। হ্যাঁ, এই রুগীটা হলো ডেলিরিয়াম অফ অভাব, ঠিক আছে? একদম কন্টিনিউ বলে যাচ্ছে আমি বাঁচতে চাই না, আমি মরবো, আমাকে মরতে দাও, কেন আমাকে এখানে, হ্যাঁ, আমার মরার একদম জীবিত থাকার ইচ্ছা নেই, এইসব কথা, শুধু মরবো মরবো এইসব। এইটা হলো ডেলিরিয়াম, আমাদের মধ্যে একদম মানে আউট অফ ট্র্যাক হয়ে গেছে। সোজা সোজা বলতে পারে যে ঠিক আছে আমি ওষুধ খাবো না, আমার ওষুধ থেকে বাস হয়ে গেছে, অত বয়স হয়ে গেছে, আর কিছুদিন ভালো লাগে, এইরকম। কিন্তু ওই একদম এরকম বলে যায়, মানে ওই আমি যে গিফটটা নিয়েছিলাম মিডিয়াম ডেথ অফ অ্যাবাউট, ঠিক আছে? মোটামুটি 5 থেকে 7 মিনিট। হ্যাঁ, ওর মহিলার মুখ থেকে এই সব যে কথাগুলো বললো, আর উঠে বসে গেছে, ঠিক আছে? বসে গেছে নিজেই, কাউকে হাত দিতে লাগলো না, বসে গেছে। তাহলে আমি দেখলাম যে বসে গেছে, আমি গিয়ে গিয়ে দেখুন আর মরার ইচ্ছা ফাঁসি দিয়েছে, মরার ইচ্ছা নেই, আসতে খাবেন কিছু, বলছে আগে ইচ্ছা থাকে নিয়ে যাও, ও নিজেই চলে গেল, নিজেই হেঁটে হেঁটে চলে গেল। হ্যাঁ, আবার আসলো, মানে কি খাবেন, খাবেন কিছু, হ্যাঁ খাবো, কি খাবেন, কুরকুরে খাবো, হ্যাঁ। আমি বললাম তাহলে একটু কুরকুরে আনিয়ে দাও, কুরকুরে খেয়েছে, বসলো 10-15 মিনিট ওখানে, আমি বললাম যাবেন, বললো হ্যাঁ চলে যাবো, মানে এরকম হচ্ছে, ঠিক আছে? অনলি সিঙ্গেল ডুপ্লিক নিলাম আমি, পরিবেশন করলাম, মিডিয়াম ডেট ডেট টক্স অ্যাবাউট, এটা লিখে নেন। আমি চিন্তাই হচ্ছে এটা, চিন্তাই হচ্ছে, আসতে চাই না, বুঝতে চাই, এটা বলে যাচ্ছে কেন, একদম বুঝে গেছে যে আমার ক্যান্সার আছে ভিতরে, কিছু না কিছু তো খারাপ আছে। ফার্স্ট কেসটা আমরা এক্সপ্লেন করে করব, আমরা 20-25টা রুব্রিক করবো। হ্যাঁ হ্যাঁ, বলছি যে ওই যে অনেকে বলে না যে আমার এইটা হয়েছে, আমি আর বাঁচতে চাই না, আমি মরে যেতে চাই, এটা মানে নার্সের ক্ষেত্রে যেটা হয়। না ওইটা আলাদা, বলার মানে কি রকম বলবে, এটাই তো বলেছি আজকে না, হাউ হোয়াট হি ওয়াজ অ্যান্ড হোয়াট হি ডাজ,
ঠিক আছে? হ্যাঁ How he talks হ্যাঁ and how he does, and হ্যাঁ why he talks and why he does. এই কথাটা মনে রাখতে হবে পেশেন্টের। এমনি বলে দিল হ্যাঁ যে আমি মরতে চাই, ওরকম হয় না। কত স্ট্রেস দিচ্ছে, তাহলে ওটা হবে ডেড ডিজায়ার, হ্যাঁ রিলিজন ডেড ডাই মাস্ট, ওটা ঠিক আছে। ডাক্তার যে আছে মাস্ট, এই রোগীটাকে নাচতে হবে। কিন্তু ওই বলার পরে বিভিন্ন প্রকার হবে, এইরকম হবে না যে আপনি বলতেছেন। যে রোগ থেকে মুক্তি চায়। হ্যাঁ, মুক্তি চায় ওরা আলাদা, হ্যাঁ ওটা আলাদা রুগী, ওরকম হ্যাঁ আপনার কাছে কোনো ওষুধ আছে? আমি মরতে চাই। হ্যাঁ তাহলে আমি আর্সেনিক দিয়েছিলাম, হলো রেজাল্টটাও করি। নেক্সট ডে জিজ্ঞেস করলাম কেমন আছে, খুব ভালো আছে। বুঝলাম কি এখন মরার ইচ্ছা হচ্ছে? না ডাক্তারও, ব্যথা না হলে কেউ মরতে চায়। আর একটা পেশেন্ট আমাকে বলেছে দেখেই নিলাম, হ্যাঁ, তো মানে নাতি পোতার বিয়ে হয়ে গেছে, ওদের বাচ্চা হয়ে গেছে, আর কি দেখবো ডাক্তার? আর এরকম কোনো ওষুধ দিয়েছেন না, শান্তি করে না, চলে যায় এখান থেকে, এরকম। ঠিক আছে? তাহলে ওনাকে রাস্তায় বর্ণনা দিয়েছি, very next day চালাবেন একটা পর্যায়ে করে যে ঘুমাচ্ছেন, ঠিক আছে? বয়স হয়ে গেছিল 93, আর একটাও দাঁত ভাঙেনি। তো এরকম যে বলা, হাউ হি টক্স, ঠিক আছে, হাউ হি টক্স, হোয়াট হি টক্স অ্যান্ড হোয়াট হি বল, ঠিক আছে? এইসব তিনটা যে 6টা সেন্টেন্স বলেছি না, এটা সবসময় মনে রাখতে হবে, ঠিক আছে? তাহলে ওই রুগী ফিট হবে। এমনি ওকে বলে দিলে আর মরে গেলে ভালো হবে, এরকম হয় না। ঠিক আছে? হ্যাঁ, বুঝে গেছো? নাচ যে বলবে না, ওই ইরিটেশনের সঙ্গে বলবে, ইমপেশেন্ট হয়ে বলবে, ইরিটেশন হবে, খুব বেশি ইরিটেশন, ইরিটেট হয়ে বলবে। এই পেশেন্ট, একজনের পেশেন্ট ডেথের কথা বলবেন, ভিতরে আসবে, কোনো জায়গায় শান্তি নাই। এইরকম কথা বলবে। চল explain করি। হ্যালো হ্যাঁ, হ্যাঁ বলছি যে তোমার মাইকটা অফ করো, মনে হয় শব্দ হচ্ছে, তাই না? পাশাপাশি মাইক অফ করে দাও। হ্যাঁ হ্যাঁ, হয়ে গেছে। ভালো রেকর্ডিং হবে মাইক অফ করলে, ঠিক আছে? আমি পাঠাই দিব। তাহলে এই যে মহিলা যে বলছে ইউরিনের সমস্যাটা, হ্যাঁ, ঠিক আছে? মাঝে মাঝে যদি ইচ্ছা করে কোনো কোশ্চেন থাকে জিজ্ঞেস করে না, ফট করে মাইকটা অফ করে দাও। এগুলো আমরা করি। রামান্দা, ঠিক আছে তো? মাইকটা অন করেন। মাইক মাইক আপনার মাইক অফ আছে, আপনার মাইক অফ আছে। এই মাইক দেখেন এখানে আছে, একবার ট্যাপ করেন মাঝখানে, মাইকটা দেখা যাবে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। এখন আমরা রুব্রিক এক্সপ্লেন করব, ঠিক? আর কিছু জিজ্ঞেস করা আছে?
বুঝতে পারছিলাম না কথাগুলো। কোনটা? কথাগুলো মানে আওয়াজ খুব কম আসছিল। আওয়াজ তেজ করেন, আর আওয়াজ করে নেন, ভলিউমটা বাড়িয়ে দেন। হ্যাঁ, পরিষ্কার আসছে। আচ্ছা, ঠিক আছে। আশেপাশে একটু শান্তি রাখবেন, ঠিক আছে? না আওয়াজটা না ইকো হবে। বাস, ঠিক আছে। তাহলে এই যে মহিলা যে বললাম যে মানে ইউরিনের সমস্যা আছে, ওইটা শুনেছেন ফার্স্ট কেসটা? আরে, বুঝতে পেরেছি, শুনলাম তো, কিন্তু কথাগুলো বুঝতে পারছিলাম না। আবার 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 বলি, বলবো? জি, বলুন। হ্যাঁ, এই মহিলা এজ হচ্ছে 33 ইয়ার্স, অ্যান্ড ছোট ছোট দুটা বাচ্চা। হুম, আমার কাছে এসে বসেই স্টার্ট করেছে, স্যার আমি অনেক অনেক ট্রিটমেন্ট করেছি, অনেক ডাক্তারকে দেখাইছি, কিন্তু ঠিক হচ্ছে না। ওনার কথাটা যে ছিল না একটু মানে অ্যাঙ্গুইশ, মনটা না খুব দুঃখিত। হ্যাঁ, একদম দুঃখিত হয়ে বলছিল এই কথাটা। এটা ঠিক হচ্ছে না স্যার। ঠিক এখন ঠিক হচ্ছে না, তাহলে তো আমি মারাই যাব না। এতদিন থেকে আমি মানে এইটা নিয়ে চলতেছি এখন। তো তাহলে এই 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 ডিজিজটা নিয়ে আমার তো ডেথ তো শিওরই আছে, আমি তো বাঁচবো না স্যার। আর আমার বাচ্চা কে দেখবে? আমার হাজবেন্ড তো এখন, অত বয়স হয় নাই, বিয়ে করে নিবে। তাহলে তো আমার বাচ্চা তো অনাথ হয়ে যাবে। ওকে কে দেখবে? ওইটা নিয়ে খুব চিন্তা আর কান্না করতেছে। কিন্তু ওর মনে চলে আসছে যে আমি তো বাঁচবো না। আর বলছেও, স্যার যখন এইটা ঠিক হচ্ছে না, তাহলে তো আমি মারাই যাব। এইরকম যে কেউ ডাক্তার ধরতে পারছে না, কেউ ট্রিটমেন্ট হলো না আমার, তাহলে तो আমার डेथ तो निश्चित। इस बीमारी के कारण मेरा मौत तो निश्चय है, ठीक है? और मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे सर, सो मेरे को बचा लीजिए, नहीं तो আর ওর সঙ্গে সঙ্গে এই কথাটাও বললো যে আমার হাজবেন্ড তো নেক্সট সেকেন্ড আবার ম্যারেজ করে নিবে, আমার বাচ্চা কে দেখবে? আমার তো আর কেউ নেই আমার বাচ্চা দেখার। হ্যাঁ, তাহলে আমি জিজ্ঞেস করলাম কি হয়েছে, কথাটা তো বলো কি হয়েছে। বলছে যে স্যার আমার একটু না ইউরিনের সমস্যা আছে। মানে কি সমস্যা? স্যার যখন আমি ইউরিন করে চলে আসি, একদম আমার এমটি হয়ে গেছে, খালি হয়ে গেছে। তাও যদি কেউ কিছু বলে দেয় যে আমি ইউরিন করতে যাচ্ছি, যদি কোনো অন্য কেউ যায়, তাহলে আমার উপায় ১ সেকেন্ডও হবে না, আমাকে যেতেই হবে। না গেলে আমার কাপড়টা নোংরা হয়ে যাবে। তাহলে স্যার আপনি বলেন, যদি এটা এইরকমই থাকবে, কেউ আমার স্কুলেও আমি যাই, স্কুলের টিচারগুলো আমার এরকম আমি চলে আসলাম, আর কেউ তো যাবে। ওরা যদি রেডি হয়ে যাচ্ছে ইউরিন, ইউরিন কথাটা শুনলেই, এই শব্দটা শুনলেই আমার পেছাব পেয়ে যায়। আর আমি থামাতে পারি না। আর কোনো দিন ওরা একটু মজাক করে দেয়, ইয়ার্কি করে দেয়, জেনে বুঝে বলে দেয় ইউরিন, তাহলে আমার তো রাগ হয়ে যায়। হ্যাঁ? আর ভাল লাগে না, আমাকে তো যেতেই হয়। তাহলে ওরা বলে, "আরে তোমার এই সমস্যা শুরু হয়ে গেছে?" হ্যাঁ? এরকম হয় নাকি কারো? তাহলে বলে দেয় মহিলা, যার সমস্যা আছে, কি যার হয় না ওই বুঝে। তোমার হবে না তাহলে বুঝবা তোমরা। ঠিক আছে? এইরকম কথা আছে। হ্যাঁ? আর ওই বাচ্চাদেরকে কথা বলে খুব কান্না করে। বারবার কান্না করে। হুম? ঠিক আছে? চল এখন এক্সপ্লেন করব। আর একটা মহিলা 70 আশেপাশে হবে, 65 প্লাস 70 আশেপাশে হবে, লাংস ক্যান্সার ছিল ওনার। ওকে গাড়ি করে অনেক দূর থেকে নিয়ে আসছে, কুচবিহার থেকে। হুম, এসে বলছে, ওই কোলে উঠিয়ে নিয়ে আসছে, হাঁটতে পারে না। বলছে আর আমি মরবো, আমি বাঁচবো না, আমি বাঁচতে চাই না, আমাকে মরতে হবে, আমি চাই না যে আমি জীবিত থাকতে চাই না, এইসব কথা শুধু মরবো মরবো এই বলেই যাচ্ছে। হ্যাঁ, তাহলে ওই সময় আমি রুব্রিক নিয়েছিলাম ডেলিরিয়াম ডেথ টক্স। ঠিক আছে? হ্যাঁ, তাহলে সিঙ্গেল মেডিসিন আছে এখানে। ও অ্যাকোনাইট দিলাম, ৫ মিনিটের মধ্যে ও
ওই বিছানাতে যে বেডের উপর আমি শুয়ে দিয়েছিলাম, ইস এখানে শুয়ে যাও। বসার মানে বসতেই পারছিল না। একদম ছটপট এরকম করছিল। আহ সবাই বলল, अच्छा, देखे बोलते अरे डॉक्टर साहब क्या कर रहा है? ये ठीक होगा, ये तो मरेगा, अभी तुरंत मरेगा। अरे मरेगा तो मरेगा यार, रुक जा, कम से कम दवाई तो दूँ। তো ওষুধ দিলাম ৫ মিনিট মধ্যে নিজেই উঠে বসে গেছে। আমি বললাম, "ঠিক আছে?" বলছে, "হ্যাঁ, ঠিক আছে।" "কি করো? কি কেমন লাগছে?" "ঠিক আছে আমি। আমি পেশাব করতে যাবো।" আমি বললাম, "যাও।" নিয়ে গেছে ওকে, পেশাব করে নিয়ে আসছে। আমি আবার গেলাম। জিজ্ঞেস করলাম, কিছু খাবেন?" বলছে, "হ্যাঁ, কুরকুরে খাবো।" কুরকুরে আমি বললাম, "নিয়ে আসো।" ও খেলো কুরকুরে আর বললো, আমি বললাম, "এখন যাবেন বাড়ি?" "হ্যাঁ, চলে যাবো।" হ্যাঁ, অনেক দূর থেকে নিয়ে আসছে। মোটামুটি ২০০ কিলোমিটার। তাহলে আমি বললাম, "এখন মরার ইচ্ছা?" বলে, "না, ঠিক আছে।" হাসি হাসি দিয়েছে খুব ভালো। হ্যাঁ, ঠিক আছে? তো এরকম আমার কাছে না দেখেন, আমি যে বললাম না হোয়াট হোয়াট হি টক্স, না হাউ হি টক্স, and what he talk and what he does, how he talk and how he does, দেখেন হলো না কি কথা বলছে, মরা তো মরে যাও মরতে চাই, কি করে মরে বলছে, how he does কিরকম করছে, আর আমি বাঁচবো না, আমি মরবো, আমার ছোট, হা হা এরকম করতেছে। হ্যাঁ, এটা হলো what he does, ঠিক আছে, এই অ্যাঙ্গুইশটা দেখাচ্ছে, and how he does একদম মানে কি বলবো রেস্টলেস মতো, ঠিক আছে? তো এইসব কথাটা মনে রাখতে হবে। He says and what he does, how he says and how he does, ঠিক আছে? এটা মনে রাখবেন সব সময়, খুব ইম্পর্টেন্ট, এমনি হবে না, ঠিক আছে? চলো, তাহলে এই মহিলা যার ইউরিনের সমস্যা আছে, চলো আমরা অনেক রুব্রিক আছে, আমরা করতে না সময় লাগবে, অনেক আছে, ঠিক আছে, অনেক আছে, মানে 40-45টা হবে। ডেলিউশন, এই মহিলা কি মনে আসছে, ইউরিন সমস্যাটা ঠিক হচ্ছে না, ঠিক আছে? তাহলে ওই ইউরিনের পার্টটা কিছু ডিফর্মিটি আসছে, কিছু খারাপই আছে, তাই না? তো ডেলুশন বডি ডিফর্ম সাম পার্ট অফ, ঠিক আছে? অ্যাকোনাইটের পেশেন্টরা কি अनुभव करे कि अमर किचु अकोनाइट वालों को महसूस होता है कि उसके शरीर का कोई अंग डिफॉर्म हो गया, खराब हो गया और उसको वापस ठीक नहीं किया जा सकता, ঠিক আছে? মিক্স করে বলবো, হ্যাঁ? বাংলা বলতে পারবো না পুরো, হ্যাঁ? মাঝে মাঝে বলবো, হ্যাঁ? আর ও अपना যে আমার অরিজিনাল শেপটা ছিল ওইটা একটু খারাপ হয়েছে, ওই শেপে নাই এখন, বুঝতে পারছো? টেলিউশন বডি ডিফর্ম সাম পার্ট অফ, আর ওইটা নিয়ে রিয়াকশনটা কি হয়, ওর মনে চলে আসলো কি, আর আমি বাঁচবো, যখন এটা ঠিক হচ্ছে না তাহলে আমি বাঁচবো কি করে, ঠিক আছে? তো এইটা হচ্ছে ডেথ প্রি সেন্টিমেন্ট অফ, মনে চলে আসলো না এই কথাটা যে আমি আর বাঁচবো না, তাই জন্য তো বলছে যে আমার ছেলে অনাথ হয়ে যাবে, আমার হাজবেন্ড নেক্সট সেকেন্ড ম্যারেজ করে নিবে, তাহলে আমার বাচ্চা ওর বাচ্চা হলে তো ওকে দেখবে, আমার বাচ্চাকে তো দেখবে না, হ্যাঁ, ঠিক আছে, এইসব কথা, তাহলে डेथ प्री सेंटिमेंट ऑफ, है ना? थॉट्स, थॉटটা डेथের थॉटটা চলে আসলো না মনে, एक मन में एक विचार आ गया ना कि अब इस बीमारी के कारण से हम हमारा डेथ तो निश्चय है, हम बचेगा नहीं, ठीक है? एंड डेथ प्री एंड डिल्यूजन डाई, ही वाज अबाउट टू डाई, अब वो मरने वाला ही था, मरने वाला ही है, ठीक है? और कल्पना करने लगता है कि इसके कारण वो जिस शरीर में डिफॉर्मिटी आया है
इसके कारण से जो आई है वो उसका डेथ का कारण बनेगा, मृत्युर कारण হবে ওটা, ঠিক আছে? আর वो दैट इज वेरी क्लोज, বেশি দিন আমি বাঁচবো না, ঠিক আছে? কালকেও দুটো কেস বলেছি, হ্যাঁ? ও বুঝে গেছে যে আর বাঁচবো না, আমার মেয়ের বিয়ে করার আছে, আর ওকে পাড়াতে লাগবে, এইসব কথাটা বলছিল। কিন্তু আমি বাঁচবো না তাহলে কি করে করতে পারবো, ঠিক আছে? কালকে আবার ও ফোন করেছিল, ওই যে লাংস ক্যান্সার লিভার ক্যান্সার আছে যার পেশেন্টের, के फोन করেছিল ওর ছেলে, স্যার একদম ছটপট কর रहा है और एकदम से परेशान है, হ্যাঁ? তো ওই আছে ওই সব রুব্রিক আছে অ্যাঙ্গুইশ মধ্যে, অ্যাঙ্গুইশ রেস্টলেসনেস উইথ, হ্যাঁ? একদম রেস্টলেসনেস হয়ে যায়। তাহলে ওই রুব্রিক যদি আমরা পাই তাহলে অসুখ চেঞ্জ করব না, ঠিক আছে? চেঞ্জ করবেন না অসুখ। ডেলিরিয়াম ডেথ টক্স অ্যাবাউট, এই যে মহিলাটা, একদম ও বলে যাচ্ছে না কি স্যার এই আমার যে এই বডি ডিফর্ম হচ্ছে, ইউরিনের সমস্যা আছে, আর ঠিক হচ্ছে না, অনেক ওষুধ খেলাম, অনেক ডাক্তার দেখালাম, তাহলে তো আমি বাঁচবো না। বারবার এই কথাটা বলছে, হ্যাঁ? বাঁচবো না, আমার ছেলে অনাথ হয়ে যাবে, আমার হাসব্যান্ড নেক্সট সেকেন্ড ম্যারেজ করে নিবে। ওটা কি হচ্ছে? মানে আমি বাঁচবো না ওই কথাটা চলে যাচ্ছে মনে। তো এইটা হচ্ছে ডেলিরিয়াম ডেথ টক্স, ঠিক? বাস, হ্যাঁ। আর কমিউনিকেটিভ এক্সপেন্সিভ, এই মহিলা এসে আগে কি শুরুয়াত করে দিল যে আমার ইয়ে হো গিয়া, আমার এই সমস্যা আছে একটা, আর ওইটা নিয়ে আমি খুব চিন্তিত। আর কোনো ডাক্তার ঠিক করতে পারছে না। তাহলে যেহেতু ঠিক হবে না তাহলে তো আমি মরেই যাবো। কিছু না কিছু তো সমস্যা আছে। কেন আমি ঠিক হচ্ছি না? এখন যখন ঠিক হচ্ছি না তাহলে তো মরেই যাবো। তো ওই তো চাচ্ছে যে বলি, কি করে বলি? তাহলে যখন আমি তো বুঝতে পারছি না যে ওর সমস্যাটা কি? ঠিক আছে? তো এই যে এক্স মানে কথাটা বলেই যাচ্ছে। কিন্তু কথাটা আমি তো বুঝলাম না, বুঝাতে পারছে না। ঠিক আছে? রিফ্লেক্টিং আনএবল টু রিফ্লেক্ট, এটাই হচ্ছে কথাটা। ও তো বুঝাতে পারছে না, না। বলে যাচ্ছে কথাটা। এখন আমি জিজ্ঞেস করলাম কি হয়েছে কি? তাহলে বলল যে আমার ইউরিনের সমস্যা। ও তো ও তো কথা বলে গেছে। কমিউনিকেটিভ প্লাস এক্সপেন্সিভ। কত কথা বলল? ১০-১৫ মিনিট তো ওই কথাটা বলল। তারপরে যখন আমি আমিও বুঝতে পারছি না। মানে কি রিফ্লেক্টিং আনএবল টু রিফ্লেক্ট। মানে কথাটা ও বোঝাতে পারছে না যে আমার হয়েছে কি। চায়োটিক কনফিউজ বিহেভিয়ার, মানে একটা ইউরিনের সমস্যাটা নিয়ে কেউ মারা যাবে? এটা মানে বিচার করার কথা। ইউরিনের সমস্যা আছে, ঠিক আছে, ঠিক হবে। কোনো ক্যান্সার তো হয় নাই না যে মারা যাবে। तो यही होच्छे चार्टिक बिहेवियर, মানে कंफ्यूज बिहेवियर। पेशेंट अपनी बीमारी के बारे में बहुत बातें करता है और दूसरों को हमेशा अपनी समस्या के बारे में बताने की उसकी प्रवृत्ति होती है, नेचर हो जाए वो। जब वो बताना शुरू करता है तो अपनी सारी समस्या बताने लगता है, एक्ट फॉर एक्ट। पर उसमें पर उसमें भी डॉक्टर को अपनी तकलीफ ठीक से नहीं कह पाता है कि सही में उसे हुआ क्या है, सही में उसका क्या तकलीफ है, असली समस्या क्या है। उसे व्यवहार में मैंने चाउटिक बिहेवियर मैंने ওটা মানে এক এক लाइन मतलब एक तरह से ना वो ठीक ढंग से आपको नहीं समझा पा रहा है। ठीक है? ठीक है ना? जैसे मैं बंगला में पूरा बात नहीं बोल सकता हूँ, है ना? पूरा পুরা কথাটা আমি বলতে পারবো না। তাহলে ওইটাই হচ্ছে চায়োটিক বিহেভিয়ার। ঠিক আছে? বুঝতে পারছো? রহমানদা? जी सर। तो हम हिंदी में अच्छा है, तो हम हिंदी में आपको अच्छे से समझा सकते हैं। बंगला में मैं बोलना शुरू करूँगा वो चायोटिक बिहेवियर हो जाएगा, कन्फ्यूज़न, आपको भी कन्फ्यूज़न, मेरे को भी हो जाएगा। हैं? আপনি হিন্দিতে ভালো কেমন করে হয়ে গেলেন স্যার? हैं? আপনি হিন্দিতে ভালো কেমন করে হয়ে গেলেন? अरे तो हम ही तो पार्टनर लोग। আপনার লোক না জলপাইগুড়ির লোক? ना, पार्टनर।
মানে बिहारी राजधानी জন্মপাটনাতে। राजधानी राजधानी का है मेहमानदार। इधर आ गया पोस्टिंग में, इधर आया, यहीं रिटायर हो गया, ও, तो यहीं इधर তাহলে জন্মপাটনাতে মাতৃভাষা হিন্দি। हिंदी। ও, इसीलिए हमारा चायोटिक बिहेवियर हो रहा है, कंफ्यूज हो रहा है, सही ढंग से मैं आपको बंगला में बता नहीं पा रहा हूँ। ये है चायोटिक बिहेवियर, ঠিক আছে? এটা এক্সাম্পল হয়ে গেল, আমি এক্সাম্পল, ওই মহিলাটা আমাকে বোঝাতে পারছে না, ঠিক আছে? তো তো এটা হচ্ছে व्यवहार अस्त व्यस्त हो गया, मतलब इधर उधर जो भी बात है मन से बोलते चला जा रहा है, लेकिन समझा नहीं पा रहे। आपको मैं समझा नहीं पा रहा हूँ अगर बंगला में बोलूंगा तो, है ना? सही ढंग या व्यवस्थित रूप से किसी के सामने पेश नहीं होना, ठीक है? किसी के सामने सही ढंग से पेश नहीं होना या अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाना, ठीक है? ये है चायोटिक बिहेवियर। एंड फियर इमेजिनरी थिंग्स ऑफ, ঠিক আছে? ইমাজিনারি থিংস কি? ওই পেশেন্টটা কি বলছে, सर जब मेरा ये यूरिन समस्या ठीक नहीं होगा तब तो मैं मारा ही जाऊंगी ना, মারা ही যাবো তো, যখন আমার এই ইউরিন সমস্যাটা ঠিক হবে না তাহলে তো ডাক্তারবাবু আমার তো মারার একদম নিশ্চয়ই আছে, ঠিক আছে? এইটাই হচ্ছে ফিয়ার ইমাজিনারি থিংস অফ অ্যান্ড উইপিং অ্যাংজাইটি আফটার। এই যে বললাম যে বাচ্চাটা, বাচ্চা মানে চিন্তা করে করে কান্না করে শুরু করে, हाँ, तो पेशेंट को काल्पनिक बातों का, काल्पनिक माने इमेजिनरी थिंग्स का बहुत, वो अपने मन से इमेज कर रहा है कि मेरा हस्बैंड का शादी हो जाएगा, मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, उनको खाना कौन खिलाएगा, कोई देखने वाला नहीं है। ये सब इमेजिनरी थिंग्स है, हो नहीं रहा ना अभी, वो केवल इमेज कर रही है। ইমাজিনারি থিংস অফ, এর আগে কোনো শব্দ এসে ইমাজিনারি থিংস অফ। হ্যাঁ, আর কোনো চিজ নিতে পারেন, কেন পেশেন্ট কখন যখন একদম, হ্যাঁ বলছি, হ্যাঁ বলেন, বলছি এটাই কি রুবিক হলো, এটাই কি রুবিক হলো ইমাজিনারি আমি থিংস অফ। এখানে কানেক্ট করতেছি ওই মহিলাকে নিয়ে, ওনার সমস্যাটা নিয়ে, ওইটা, ওই সমস্যাটা নিয়ে উনি কি বলছেন, কি আমার হাজবেন্ড সেকেন্ড ম্যারেজ করে নিবে, যে আমার, ওনার যখন বাচ্চা হবে তো আমার বাচ্চাদের উপরে ধ্যান দিবে না, তো আমার বাচ্চা তো অনাথ হয়ে যাবে, এই একটা কথা হলো এই কেসে, এই যে কথা। হ্যাঁ, हाँ, আর কি, যখন মানুষ, पेशेंट खूब बहुत बीमार हो जाता है, बहुत बीमार हो जाता है, तो बोलता है ना, अरे यार ये छत में कोई खेल रहा है, लगता है छत गिर जाएगा नीचे, ऊपर ढम-ढम हो रहा है, टूट के गिर जाएगा। ये सब है इमेजिनरी थिंग्स, ठीक है? छत हमारा, एकोनाइट में एक रूब्रिक है कि छत, दीवार जो है हमको धीरे-धीरे चाप देगा, हाँ, वो रूब्रिक है एक। तो ये सब फिर कोई दीवार चल के थोड़ी आपको चापने आ जाएगा, है ना? तो ये इमेजिनरी थिंग्स है। एंड वीपिंग एंग्जायटी आफ्टर, ये सब बात बोल के रोना शुरू कर देता है कि मेरा बच्चा अनाथ हो जाएगा, उसको कौन खाना खिलाएगा, और जोर-जोर से रोने लग जाती है, ठीक है? और वही अपना बीमारी को लेके, अपना बीमारी को बताते-बताते ये घबराहट हो जाता है और रोना शुरू कर देती है, ठीक है? पर जब समझाया जाता है कि ये सही नहीं है, तो जो आप सोच रहे हैं, যখন আমি বললাম, अरे आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? तो पेशाब का समस्या से कोई मरता है क्या? आप इतना सारा बात क्यों दिमाग में ला रहे हो? क्यों परेशान हो रहे हो भविष्य को लेके? इतना एंग्जायटी, इतना चिंता क्यों? इससे कुछ नहीं होगा, मैं देता हूँ दवा आपको। যখন আমি এটা বললাম, जब समझाया जाता है कि सही नहीं है, तो आप सोच रहे हैं, तो वो दूसरी बात पे चले जाओ। তাহলে ওই অন্য কথাটা বলা শুরু করে দিল। হুম? रोने लगता है और कहता है मुझ पर किसी दवा का असर क्यों नहीं हो रहा? কেন কোনো ওষুধ আমার উপরে কাজ করছে না? ঠিক আছে? ये बात तो बड़ी दुखी अवस्था में करता है, একদম দুঃখিত anguish कंडीशन में बोलছে এই কথাটা। जब मैं मन में विचार करता हूँ, सोचता हूँ अपनी अवस्था के बारे में, तो मेरे आँखों से आँसू निकल आते हैं। मैं परेशान हो जाता हूँ। क्या कारण है कि मैं ठीक नहीं हो रहा?
ঠিক আছে? এইটাও এক লাइन হচ্ছে অ্যাকোনাইটের लाइट डिजायर से। ठीक है? क्या कारण है कि मैं ठीक नहीं हो रहा, इतना डॉक्टर दिखा लिया, क्यों ठीक नहीं हो रहा? ঠিক আছে? কেন আমি ঠিক হচ্ছি না? কত ওষুধ খেলাম, কত ডাক্তার দেখাই দিলাম, সবাই বলছে কিছু নাই কিছু নাই, তাহলে আমি ঠিক হচ্ছি না কেন? কি কারণ আছে? এইটা একটু আমরা লাইট ডিজাইন নিতে পারি। ঠিক আছে? तब मैं चिंतित हो जाता हूँ क्योंकि दवा भी काम नहीं कर रही, जिसके कारण से मेरी बीमारी ঠিক নেই हो रही है। তাহলে আমার একটা মানে চিন্তা শুরু হয়ে যায় কি দাওয়া যখন আমার এই অসুখটা ভালো মতন কাজ হচ্ছে না, তাহলে আমার তো শরীর এই অসুখটা তো আর বেড়ে যাচ্ছে। তাহলে আমি যখন এই আর খারাপ কন্ডিশনে চলে যাব, তাহলে তো মৃত্যু তো আমার নিশ্চয়ই না। এই কথাটা বলছি। मेरी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, जब बीमारी ठीक नहीं होगी तो इसका परिणाम तो मौत ही है, मरबो ही, वो भी बहुत जल्दी, वेरी नियर, डेथ प्रिसेंटिमेंट ऑफ प्रेडिक्ट द टाइम। এরকম হয় অ্যাকোনাইট পেশেন্ট, টাইম বলে দেয়, রাত 2 ঘন্টা পর চলে যাব আমি। ঠিক আছে? जल्दी है, निकट है, पर मैं इसके लिए रेडी नहीं हूँ। আমি মরতে চাই না ডাক্তার বাবু, এটা হচ্ছে ফিয়ার ডেথ অ্যান্ড লাইট ডিজায়ার ফর হোপ চাই। আমার কোনো উপায় আছে যে আমি বেঁচে যাব। ঠিক আছে? তো এটা হচ্ছে লাইট ডিজায়ার অফ অ্যাকোনাইট হোপ। একটা হোপ কেউ দিয়ে দেয়, আরে কিচ্ছু নাই তোমার, কেন ওষুধ পরেশান হচ্ছ, আমি ওষুধ দিব তো ঠিক হয়ে যাবে। ওইটা ওকে একটু কেমন লাগে, অ্যাংজাইটি কোল্ড ড্রিঙ্কস মেল। কোল্ড ড্রিঙ্কস খেলে কেমন লাগে তখন একদম আমরা একদম ছটপট ছটপট মন করে একটা কোকা কোলা মুখে দিলে খায়, এরকম হয় না? ওই অ্যাংজাইটিটা একটু ঠান্ডা হয়ে গেল। ঠিক আছে? वो भी बहुत जल्दी निकल। हाँ, कोल्ड ड्रिंक्स अमेल रुब्रिक और ये वो भी बहुत जल्दी है। की बोलते कि अगर नहीं मेरी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, जब बीमारी ठीक नहीं होगी तो इसका परिणाम तो मौत है, और वो भी बहुत जल्दी निकट समय में, जिसके लिए मैं तैयार नहीं हूँ। मैं इतना जल्दी मरना नहीं चाहती, अभी मुझे और जीना है। मेरी उम्र ही क्या हुई है डॉक्टर साहब, 33 साल तो उम्र है मेरी, ये मरने की उम्र है मेरी। ठीक है? এরকম কথা বলে পেশেন্ট। হ্যাঁ, व्हील कंट्राडिक्शन, व्हील कंट्राडिक्शन ऑफ पेशेंट अपने क्रियाकलाप के बारे में निश्चय नहीं कर पाता क्योंकि उसका मन स्थिर नहीं होता है, रेस्टलेस। মনটা কি আছে একদম রেস্টলেস, স্থির করতে পারছে না। ঠিক আছে? তাহলে ওর মনের ভিতরে যে কন্ট্রাডিকশনটা চলতেছে, ঠিক হব না হব, এই ডাক্তার কাছে যাবো, ওই ডাক্তার কাছে যাবো, এই কন্ट्राडिक्शनটা चलते থাকে, स्थिर नहीं होता है, मन भटकता रहता है, किसी एक बात पर मन स्थिति बना नहीं पाता है, अपने काम को ठीक ढंग से अंजाम अंजाम दे सकने की स्थिति में नहीं है। নিজের কামটাও না ভালো মতন করতে পারে না, এটা রয়ে গেল ওইটা রয়ে গেল, সব কাম নিয়ে নিবে আর কাজ করছো একটা মানে পায়, একটা মানে ব্যবস্থিত ঢঙ্গে ওইটা কাজটা হয় না। ইন্ডাস্ট্রিয়াস, ইন্ডাস্ট্রিয়াস, হ্যাঁ, ইন্ডাস্ট্রিয়াস ম্যানিয়া ফরওয়ার্ড, অনেক কাজগুলো নিয়ে নেবে একসঙ্গে, এই আমি করে দেবো, ওইটাও করে দেবো, ওইসব করে দেবো, কিন্তু ওই করতে পারে না, व्यवस्थित ढंग से करते पारे। এই জন্য কি হয়, सब कामটা एमनी रहेगा, आधे आधे आधा आधा इधर करेगा आधा उधर करेगा तो काम तो पूरा हुआ नहीं, तो काम खत्म नहीं होता है, हमेशा इसका काम पड़ा रहता है। परसिवरेंस अंडरटेक्स मेनी थिंग्स, परसिवर्स इन नथिंग, यही एक तरफ दिया। परसिवरेंस अंडरटेक्स मेनी थिंग्स, परसिवर्स इन नथिंग, অনেক কাজটা নিয়ে নিবে, बहुत सारा काम ले लेगा, काम करने वाली प्रवृत्ति के कारण बहुत सारा काम एक साथ ले लेना, पर उसमें से एक को भी पूरी तरह से अच्छे ढंग से पूरा नहीं करना।
करने की इच्छा रहती है, पर दृढ़ इच्छा, परसिवरेंस का कमी है, अभाव है, किसी काम में दृढ़ता से नहीं कर पाती है, किसी एक काम पर दृढ़ता पूर्वक नहीं रह पाती। बहुत सारा काम ले लेगा लेकिन परसिवर इन नथिंग। एक काम पहले खत्म कर दो, फिर दूसरा ले लो, फिर तीसरा ले लो, ऐसा नहीं कर पाती है वो। इसलिए उसका काम क्या होता है, उसका काम रह जाता है, पूरा नहीं हो पाता है। हाँ, अभी एक रूब्रिक है कंट्राडिक्शन टू स्पीच। ठीक है, एक पेशेंट ऐसे ही आई थी मेरे पास, उसके किडनी का कुछ प्रॉब्लम था। सिस्ट हो गया किडनी में। तो कंट्राडिक्शन टू स्पीच, इंटेंशंस आर, ठीक है से, कंट्राडिक्शन टू स्पीच, इंटेंशंस आर कंट्राडिक्शन टू स्पीच, कंट्रारी, कंट्रारी এই রুব্রিকটা আছে টু স্পিচ, কন্ট্রারি, CON, রিপার্টরি আছে সবার সামনে? কন্ট্রারিতে যান। contradictory টু কন্ট্রাডিক্টরি, contrary to speech, to speech, intentions are, intentions are, ঠিক আছে? তার এই আমার এই পেশেন্টের আমি কথা এই ভার্সনটা বলি। একটা পেশেন্ট ছিল, ওর কিডনিটা একটু সমস্যা ছিল। বলছে কি, सर इतने दिनों से आपकी दवा खा रही हूँ, मेरा किडनी तो ठीक हो जाना चाहिए था, लेकिन सर अभी तक तो कुछ हो नहीं रहा है। तो उस আমরা বলবোই, अरे जब ठीक नहीं हो रहा है तो आप कैसे आ रहे हो? ठीक है तभी ना आ रहे हो, नहीं तो आप तो पहली बार आए थे कैसे गाड़ी में आए थे, अब तो आप पैदल आ जाते हो, है ना? पहले से शरीर आपका ठीक है, आपका यूरिन वगैरह सही हो रहा है, पैर जो फूलता था वो भी ठीक है, तो ऐसे पता कैसे लगेगा डॉक्टर साहब कि मैं ठीक हो गई? मन इतना भ्रमित, कंट्राडिक्टरी টু স্পিচ, ইন্টেনশনস আর কন্ট্রাডিক্টরি টু স্পিচ। যে মনের কথাটা আছে ওইটা, মনের যে ইচ্ছা চলছে ওইটা मन में क्या है, वो बोलना कुछ और है, ठीक है? मन इतना भ्रमित व्याकुल होता है कि कहने और कहने में और उसके मन में फर्क है, अंदर में समरूपता नहीं है। इच्छा कुछ और होती है पर कह कुछ और देती है। अगर उससे पूछा जाए क्या आप मुझसे नाराज हैं, तुरंत बोले नहीं नहीं डॉक्टर साहब आपसे कैसे नाराज हो जाएगा, है आपसे। पर आपके बोलने से तो ऐसा लगे जैसे वो किडनी वाला पेशेंट में बोल रहा हूँ, आके पूरा गुस्सा में, सर इतना दिन से दवाई खा रही हूँ और ठीक नहीं हो रहा है, तो सर ऐसे कैसे चलेगा? अरे झगड़ा करने आया था, बोले नहीं सर आपसे आपसे झगड़ा नहीं सर, ऐसे बोल रही हूँ सर, मेरा ठीक नहीं हो रहा ना सर, इसलिए मैं इस तरह से बोल रही हूँ। तो ये है कंट्रारी टू स्पीच, इंटेंशंस आर कंट्रारी टू, आपका जो मन में इच्छा है लेकिन मुंह से कुछ और निकल जाता, ठीक है ना? मन में आप आए नहीं, झगड़ा करने नहीं आए, लेकिन आपके मुंह से निकल गया, तो आप पूछ लेंगे कि भाई झगड़ा करने, तो बोले नहीं 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 सर, मैं, आप गलत समझ रहे हैं, मैं झगड़ा करने नहीं आया हूँ, मैं तो अपनी बात बता रही हूँ, मेरा ठीक नहीं हो रहा है, मेरा ऐसे लग रहा है सर कि ठीक नहीं हो रहा है, ठीक है? तो यही है कंट्रारी टू स्पीच, इंटेंशंस आर। तो हमको पढ़ना ऐसे, इंटेंशंस आर कंट्रारी टू स्पीच, ठीक है? अगर उससे पूछ, हाँ, सोच भी नहीं सकता, यह सोच भी है, अगर मैं इस बार ठीक नहीं हुई तो अब वापस आपके पास नहीं आऊंगी, डॉक्टर साहब आप मुझे, डॉक्टर अमित जी को आप धमकी दे रहे हैं? नहीं सर, कैसे आपको धमका सकता हूँ? आपको तो मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ या जताना चाहती हूँ कि मुझे कोई आराम नहीं मिल रहा है ना? तो एकोनाइट का एक ये भी बिजनेस टॉक्स, ठीक है सर, टॉकिंग बिजनेस, এরকম अकोनाइट बोलবে, फॉस्फोरस बोलবে, सर थोड़ा तो ठीक होना चाहिए ना, ठीक नहीं हो रहा है सर, इसीलिए तो बोल रही हूँ, এরকম বলবে। হ্যাঁ, আর ফসফরাস কিরকম বলবে, सर बाकी सब तो ठीक है सर, लेकिन वो वाला समस्या ठीक नहीं हो रहा है, ওই খুব ভালো মতন বলবে একদম পেশেন্সলি, কোনো ঝগড়া নাই কিছু নাই, কিন্তু
এই एकोनाइट একটু दाग हुए सर, ठीक तो नहीं हो रहा है, इतना दिन से दवाई खा रही हूँ, दर्द तो नहीं जा रहा है। ऐसे कैसे सर, थोड़ा तो कुछ फर्क पड़ना चाहिए, इतना दिन से दवाई खा रहा हूँ। ठीक है, तो ये टॉकिंग बिजनेस में ना, ये भी आ सकता, इस तरह का अलग अलग, सबका अपना टॉकिंग बिजनेस अलग होता है। ये चीजें हम धीरे धीरे सीखेंगे, अभी इतना जल्दी तो नहीं सीखेंगे। जैसे जैसे आपके पास पेशेंट आता जाएगा, उसका आप इंटरप्रेट करेंगे, तो आपको समझ में आने लगेगा कि कौन पेशेंट का टॉकिंग बिजनेस कैसा है। जितने भी मेडिसिन है उसके अंदर, उसका सबका टॉकिंग बिजनेस कैसा है, ये धीरे धीरे समझ। सेल्फ टॉर्चर, जो बातें या शब्द वो प्रयोग में लाती है या करती है, वो परस्पर विरोधी या विपरीत होते हैं। मतलब यह कि वह कुछ कहना कुछ और चाहती है, पर कुछ और कह देती है। इसी कमजोरी के कारण वो बहुत सारी बातें अपने मन में ही दबा लेती है कि कहीं कुछ निकल जाएगा मुंह से, इसलिए चुप ही रहो। इसलिए अपने आप को सेल्फ टेस्टर, उस चाहती है कि मैं बोलूं, डॉक्टर को जाकर बताऊं कि मेरा ठीक नहीं हो रहा है, या एक किसी के साथ कुछ चल रहा है मेरा, हाँ, किसी से झगड़ा हो रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा, मन में दबा हुआ है। तो उससे क्या होता है, आप अपने आप को तकलीफ दे रहे हैं, अपने मन में जो तकलीफ है उसको बोल नहीं पा रहे, किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, तो क्या होगा, आप अपने आप को टॉर्चर करने वाली बात हो जाती है। ठीक है ना, कुछ देती है और उसके समस्या के लिए विरोधाभास पैदा करती है। इसी कमजोरी के कारण वो बहुत सारी बातें अपने मन में ही दबा लेती है, ताकि दूसरों के साथ किसी तरह का मन मुटाव या झगड़ा नहीं हो जाए। मन मुटाव का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा बातचीत थोड़ा बंद हो जाता है, आपस में उतना जो घुलना मिलना होता है वो खत्म हो जाता है, मन मुटाव या विरोध ना हो जाए। इसी सब बातों का ध्यान रखते हुए वो अपने आप को टॉर्चर करता है। सेल्फ टॉर्चर एक रूब्रिक है इसमें, एकोनाइट। इसलिए ये जल्दी से ना किसी के साथ झगड़ा करने नहीं चाहिए। कवाडिस, हाँ, ये सब सेल्फ टॉर्चर का कारण क्या है, कवाडिस है, हाँ, इंट्रोस्पेक्शन। করে কিন্তু ওরকম না, ও বুঝে যে আমি যদি ঝগড়া করব তা আমার কে ঠিক করবে, আমার তো সমস্যা আছে, কিছু না কিছু তো সমস্যা আছে। ঠিক আছে, করবে, কিন্তু ফট করে বুঝে যাবে যে না, এটা আমি ভুল করলাম, তাহলে বলে দিবে। কেউ ভাবে ওটা হাইড করবে নিজেকে, কি করে বাঁচাই, ওইটা আসতেছে। হুম, इंट्रोस्पेक्शन, डर है, उसे डर रहता है, डरती है, विचारवान है, सचेत भी, अतः वो अपने लिए और समस्या खड़ा नहीं करना चाहता। इसलिए यहाँ पे ना तीन चार रूब्रिक एक साथ है, कवाडिस है, डरपोक है, इंट्रोस्पेक्शन, जब देख लेता है कुछ बोल दिया कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए, तो इसलिए कॉशियस हो जाती है, बोलने के पहले नाप तोल के बोलना, समझ के बोलना कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना। Delirium, sleeping, while awakened insists that he was। जब वो कोई बात को छुपाना है तो हम कैसे बोल देते हैं, उससे जानकर भी अनजान बने रहना। डेलीरियम, डेल्यूजन, स्लीपिंग, मतलब जैसे किसी ने पूछ लिया, अरे आपको तो बोला था ये इसके लिए अंडा नहीं खाना, आपका स्किन का प्रॉब्लम है, या लीवर का प्रॉब्लम है, आप ज्यादा मसाला नहीं खाना। अच्छा डॉक्टर साहब, सर मैं तो भूल गई थी, मेरे को पता नहीं था कि आपने बोला है, मैं ध्यान नहीं दी थी। मतलब क्या है कि आप दिखावा कर रहे हैं, illusion sleepy, हाँ, while awakened insist that he was sleeping, हाँ, आप मतलब कि आपने तो बताया है उसको, लेकिन वो अपने आप को हाइड करने के लिए, बचाने के लिए क्या करेगा, बोले डॉक्टर साहब मैं उस दिन ना ठीक से सुनी नहीं, आप तो बताए होंगे जरूर, लेकिन मैं सुनी नहीं, तो अभी से मैं ध्यान रखूंगा। जबकि उसने उसको सब कुछ सुना है, बताया गया है एक एक करके, लेकिन अब बचना है तो क्या करते हैं, अब कोई हो जाता है ना कि भाई किसी से जब घर में भी झगड़ा हो जाता है तो झूठ मूठ का उधर मुंह करके सोए रहता है, सोया तो नहीं रहता है लेकिन दिखाता है कि मैं सोया हूँ, कि भाई नहीं मैं बात नहीं करना चाहता हूँ। होता है ना, जैसे कोई आ गया आपके घर में, आप उससे मिलना नहीं चाहते तो बोल दो, बता दो, वो घर में आके देखेगा, कोई बच्चा देख लेगा, अरे पापा सो रहे हैं, बाद में आइए, है ना।
लेकिन आपको पता है कि वो कोई आया, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, स्लीप, सोने का एक ये कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि मैं सो रहा हूँ, सो नहीं रहे हैं, आप जगे हुए हैं। ठीक है, जैसे कि उसके बारे में जानती ही नहीं थी, वो क्षमा मांग लेगी, और कि उसे जानकारी नहीं थी, पर उसने जो किया अनजाने में किया, बहुत भोलेपन से वो अपनी गलती को छुपा लेना था। जैसे आपने बोल दिया कि भाई आप मसाला नहीं खाना, अब लीवर खराब है, नेक्स्ट टाइम वो आ गया फिर से दवाई लेने, सर बहुत जलन हो रहा था, तो आप पूछेंगे कि मसाला वसाला खाया था, सब्जी वब्जी खाया था? बोले हाँ सब खाया था, तो मैंने तो आपको मना किया था। सर मैं ठीक से ध्यान नहीं दी सर, आपको बात में समझी नहीं थी, इसलिए लगता है कि मैंने खा लिया सर, आगे से ध्यान रख। मतलब बड़े प्यार से, इनोसेंटली जो है ना, अपनी बात को वो छुपा लेगा। वो तो मालूम था कि मैं को बताया डॉक्टर ने, लेकिन वो बहाना क्या है कि मैं सुना नहीं था, मतलब डिल्यूजन स्लीपिंग व्हाइल अवेकेन। ঠিক আছে, বুঝলেন এইটা? বুঝছেন সবাই? ये रूब्रिक समझ में आ रहा है सुभाषिस दा? बुझছে तो? ठीक है सर। पूछा जाता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो कहती है कि मुझे खासकर ये बात पता नहीं थी डॉक्टर साहब, कि मसाला नहीं खाना, ठीक है, या अंडा नहीं खाना है, ये बात पता नहीं थी, खास करके सब ये वाला बात मेरे को ध्यान नहीं था। तो इस तरह का जो बात होता है ना, ये वाला रूब्रिक होता है delusion sleeping while awakened insists that he was sleeping। ठीक है सर, आगे से ध्यान रखूंगी। फियर इमेजिनरी थिंग्स तो बता दिया, सेंसिटिव लाइट तो, যে রুবিক্সটা বলা হলো, हाँ পরে দু তিনটা রুবিক একটু বলে দিন তো স্যার। कवर्डाइज, इंट्रोस्पेक्शन एंड कॉशियस, এই তিনটা একসঙ্গে চলবে। इंट्रोस्पेक्शन, हाँ, নিজের अपने मन में विचार करना, इंट्रोस्पेक्शन होता है ना, सेल्फ एनालाइजिंग वाला बात। तो ये जान लेता है कि अगर मैं कुछ बोलूंगा किसी को, एक तो अंदर से थोड़ा डर है, डर, बीमार है तो डर तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो अंदर में तो एक डर है ना, ठीक है, तो उसको बचाने के लिए तो ये कॉशियस रहता है कि मैं कुछ ऐसी बात ना बोल दूं कि जिससे कि अगला आदमी नाराज हो जाए। ঠিক আছে? ঠিক। আর পরেটা হচ্ছে কাউশিয়াস। हाँ, कॉशियस माने ऐसा ही बात करना जिससे कि लोगों को कोई ये गड़बड़ ना हो, हाँ मेरा गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है सर, जेस्टिंग जोक कैनॉट टेक इट। ठीक है, तो इस महिला के साथ जो यूरिन का प्रॉब्लम था, इनको कभी कभी स्कूल में लोग मजाक में कभी कभी बोल देते, मजाक में इनको बोल देते, ये जैसे यूरिन से होती थी जैसे तो कोई बोल देता था कि मैं भी जा रही हूँ, मतलब इसको तंग करने के लिए, इसके ऊपर मजाक होता है, तो ये गुस्सा होता है, बोलती थी कि तुम लोग को मजाक सोचता है, और यहाँ मैं मर रही हूँ, तुम लोग को होगा ना तब पता। तो ये जोक कैनॉट टेक इट, जेस्टिंग नॉट, इस तरह से एक समय ऐसा आ जाता है कि उसके वो जो व्यवहार टच व्यवहार को लोग मजाक बना देते हैं, उसकी बीमारी को लोग क्या करते हैं, मजाक बना देते हैं, और उससे কোনটা স্লিপ, হ্যাঁ, delusion sleeping, দেখেন ওই রিপার্টারটা খোলেন, sleeping while awakened, while awakened insist, delusion sleeping while awakened, sleeping के बाद देखें while awakened insist that he was,
तो जेस्टिंग देके एंड जेस्टिंग अवर्सन टू। एक और केस बताता हूँ, छोटा सा बताता हूँ। हाँ, एक आदमी है, उसको लीवर का प्रॉब्लम है, गैस होता है बहुत ज्यादा, जिसके कारण से हाँ जेस्टिंग जोक 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 कैनॉट ओके, जेस्टिंग के बाद जोक JOKE, जेस्टिंग के बाद जोक देखिए, कैनॉट टेक ए, ये पूरा रूब्रिक है। और दूसरा रूब्रिक है जेस्टिंग अवर्सन टू। ये महिला से भी रिलेट करके इनका भी वर्जन बताऊंगा और एक और पेशेंट का वर्जन बताऊंगा, ठीक है। तो लीवर के कारण ये पेशेंट जब डॉक्टर के सामने बोल रहा है कि डॉक्टर साहब ये लीवर प्रॉब्लम के कारण ना मेरा सांस रुक जाता है, गैस बढ़ जाता है तो सांस रुकने का चक्कर हो जाता है, तो मैं कहता हूँ कि अब मैं बचूंगा नहीं, मर जाऊंगा, सांस रुकेगा तो नेचुरली मैं बोलता हूँ। तो मेरी पत्नी हंसती और कहती है इस बीमारी से कोई मरा है आज तक, गैस से कोई मरा है आज तक? तो ये मेरा मजाक उड़ा देती है, डॉक्टर साहब देखिए। तो यही है जेस्टिंग जोक कैनॉट टेक इट एंड जेस्टिंग एब्सेंट टू, ठीक है। वाइफ बना बना दे, क्या हो रहा है इस लेडी के साथ, यूरिन का समस्या है, स्कूल में टीचर है, तो कभी कभी टीचर लोग मजाक में इसको मतलब मजा लेने के लिए बोल देती कि मैं भी यूरिन जा रही हूँ, जबकि वो बेचारी तुरंत आई होती है। अब इसको तो जाना है, इसका व्यवहार को देख देख के ना लोग इसके ऊपर मजाक बनाना शुरू कर देते हैं, लोग बना देते हैं और उसके कथन पर मजाक करने लगते हैं। जो वो बोलती है कि मेरे को ये समस्या होता है, बार बार इस तरह का एक्रोनाइट का पेशेंट क्या है ना, सबको अपनी बीमारी के बारे में बोलता रहता है, तो लोग भी थोड़ा सा बोर हो जाते हैं कि यार ये डेली डेली तो बीमारी बताती रहती, तो लोग अब उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। लेकिन इसको मजाक पर पसंद नहीं है, ठीक है ना। जो लोग पसंद नहीं होता उसकी कही हुई बातों को लोग बाग हंसते हैं, तो एकदम से बर्दाश्त नहीं कर पाती है या कर सकती है, इसलिए वो अचानक ही गुस्सा हो जाती और कहती है क्यों इस तरह से मजाक करना आप लोग को अच्छा लगता है, जबकि मैं मर रही हूँ अपनी तकलीफ के कारण। जोर से एकदम से गुस्सा में आके बोलती इस तरह से आप लोग को मजाक करना अच्छा लगता है, जबकि पता है, मेरे को पता है ना कि मैं कितने कष्ट में हूँ, मैं मरी जा रही हूँ इसके कारण से, और आप लोगों को मजाक लग रहा है। ऐसा जोर से बोल देती है, बोलने को तो बोल गई। बोलने को तो ये बोल गई, अब इसको क्या होता है, इंट्रोस्पेक्शन होता है, अब इसको लगता है कि अरे यार गलत तो नहीं बोल दिया, तब कैसे उसको कवर करेगा, तो वो रूब्रिक है रेज अल्टरनेट विथ कंसेंशियसनेस। रेज में जाइए, रेज में रूब्रिक में जाइए, रेज है ना, अल्टरनेट विथ, रेज में जाइए और वहां देखिए अल्टरनेट विथ कंसेशियसनेस, कॉन्शियसनेस, ठीक, मिला। पेशेंट पानी, रेज रेज RAG, अल्टरनेट विथ रेज अल्टरनेट विथ कॉन्सेंशियस, ठीक है। जब इस तरह के बात उस मतलब टीचर के रूम में ये बात चल रहा है ना, ठीक है, वास्तव में स्टाफ के लिए, तो इसको जब ये बात पसंद तो होता नहीं है, इस तरह की बात जो चलती रहती है और उससे मजाक पसंद नहीं होता, वो आगे बात बढ़ाते हुए अत्याधिक गुस्से में एकदम रीच बात करे जोर पर और कह देती है, जूते पहनने वाले व्यक्ति को पता लगता है कि कहाँ पे जूता काट रहा है। ये बंगला में कैसे बोलेंगे, रमानदा, नया जूता जब पहनते हैं ना तो कैसे काटता है जूता, है ना,
तो जब ऐसे कोई बोले कि जूता पहनने वाले को पता लगता है कि कहाँ काट रहा है ना। अब वो गुस्से में बोलेगा तो बंगला में कैसे बोलेगा? हाँ, तो एकदम राग होए बोलबे এই কথাটা कि जो जूता पहने व्यक्ति को ही पता लगता है कि कहाँ दर्द हो रहा है। ये सब बात वो अचानक एकदम जोर से बोल देगा, गुस्सा में एकदम राग, रेज एकदम, जो बोलते हैं ना राग होए बोले, गुस्से में आने के बाद कहती है तो तुरंत उसको एहसास हो जाता है कि अरे हमने क्या बोल दिया, है ना। अल्टरनेट विद कंसेंशियसनेस, क्या सब तो अपने ही लोग हैं, आपको ऐसे इतना बोल दूंगा फिर मेरे से तो काम है, सबको तो मिलजुल के ही काम करना है। तो ये बात फटाक से दिमाग में आ जाती है। तो इंडिग्नेशन, ये सब बात बोल के वो थोड़ा देर तक शांत हो जाता है। तो देख लिया गलत हो गया, अब इस बात को, इसको जो इंडिग्नेशन, अब तो इसकी गलती नहीं है ना कि भाई इसको ये बीमारी है तो जाना तो पड़ता है। इंडिग्नेशन में क्या होता है, आपने गलती नहीं किया है लेकिन आपको इसके लिए भुगतना पड़ता है, अनजस्ट, है ना। जो आपने गलत नहीं किया है उस गलती के लिए आपको भुगतना है। तो ये तो इसकी गलती नहीं है कि भाई इसने जानबूझ के तो अपनी बीमारी नहीं की है ना। इंडिग्नेशन, इंडिग्नेशन, डिस्कम्फर्ट एंड जिंदर, एक रूब्रिक है ना, लेकिन यहाँ पे केवल इंडिग्नेशन, ठीक है। वो क्या है, इन सब बातों के बाद वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। ये जोर से उसने बोल दिया, अब उसको तो समझ में आ गया कि मैं तो गलत बोल गई, तो थोड़ी देर शांत हो जाएगी। जैसे ही वो अपने आपे में आ जाता, शांत होकर थोड़ा सा मन शांत हुआ, अपने गुस्से को बचाव करने के लिए, जो उसने जो गुस्सा करके बोल दिया था उसको तो अभी डिफेंड भी करना है ना, नहीं तो फिर हमारा तो इज्जत खत्म, है ना। तो डिफेंड करने के लिए क्या करता है, गुस्से को बचाव के लिए बोलना शुरू करती है ताकि लोग उसके इस व्यवहार को कमजोरी न समझें। अपनी इज्जत बचाने के पक्ष में वो आगे बोलते हुए क्या कहती है, उससे लगता है कि कहीं उसके द्वारा कही या करी गई बातें उसके अभिमान या इज्जत का बट्टा तो नहीं लगा, उसका इज्जत तो नहीं खराब हो गया उसने जो बोल दिया। तो वह अभद्र निडर तरीके से हंसते हुए लोगों से कह देती है, मुझे पता है तुम लोग कितने बुद्धिमान फिर हो, और ज्यादा अपने आप को होशियार मत समझो। इस तरह से वो अपने आप को एक सम्मानजनक स्थिति में लाकर बातों को वहीं खत्म कर देती। उसके बाद उसको कोई परवाह नहीं होता है कि बाद में इसका क्या रिजल्ट आने वाला है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अपने आप को तो डिफेंड करना है ना। उसने गुस्सा में तो बोल दिया कि जो जूता पहनता है और कहाँ गड़ता है उसी को पता होता है, मैं बीमार हूं मेरे को पता है, तुम लोग भी बीमार होगी ना तो तुम्हें भी पता लगेगा। इस तरह से जोर से बोल दिया। अब तो मन में लग गया कि भाई ये तो गड़बड़ हो गया, तो उसको बचाने के लिए क्या है, कैसे उसको डिफेंड करेगा, तो यही है, क्या है, वाइल्डनेस, और गुस्सा होके कि तुम लोग अपने आप को ना बुद्धिमान मत समझो, बहुत ज्यादा तुम लोग को क्या बीमार नहीं होते हो, तुम्हें बीमारी नहीं लगती है, अमर हो के आए हो, ऐसा वाइल्डनेस, करेजियस, ऑडेसिटी, डेफिएंट, इस तरह से अपने आप को सेव कर लेना और उसके बाद भूल जाना कि मैंने जब बोल दिया, अब वैसा कोई चिंता नहीं है मेरे को। तो अपने आप को कैसे कवर करता है, इस तरह से वाइल्ड एकदम होके, करेजियस होके, और जो मर्जी बोल दिया, ठीक है। अब नेचर कैसा होता है कोनाट का, ठीक है। तो नेचर वाइज हम बोल सकते हैं, ये तो डिजीज कंडीशन में हो गया ये सब काम। हाँ, अभी हम लोग इसका नेचर के लिए देखेंगे। माइल्डनेस, मेडिटेशन, मूड रिपल्सिव, ये इसका नेचर है। मतलब सामान्य रूप से इस तरह के लोग बड़े ठंडे दिमाग के होते हैं, सारी समस्या अपने ऊपर ही ले लेते हैं। सामान्य रूप से ऐसे व्यक्ति अपने आप में मग्न रहते हैं, मेडिटेट करते रहते हैं। मैं बोलते हैं ना कि यार ये अकेले ही रहता है, तो क्या है, अकेले रहने का मतलब कुछ ना कुछ अपने मन में सोचता रहता है। मेडिटेशन में क्या करते हैं हम लोग, यही होता है ना, अपने मन में सोचते रहो, चलाते रहो।
मग्न रहते हैं, पर उन्हें मजाक अच्छा नहीं लगता, उन्हें कोई इज्जत ना दे तो उन्हें खलता है। और इनका जो नेचर है उसमें क्या आता है, लेडी क्या बोल रही थी, फियर डेथ ऑफ, लाइट डिजायर फॉर, फियर सफोकेशन ऑफ, फियर कंपनी ऑफ। ठीक है, तो इस लेडी ने मेरे पास आके तो डर का बात किया, लेकिन और लाइट डिजायर, भैया अगर मैं, डॉक्टर साहब अगर मैं ठीक नहीं हुई, अगर ये बीमारी मेरी ठीक नहीं हुई तो मैं तो बचूंगी नहीं ना, तो मैं ठीक क्यों नहीं हो रही हूँ, इतनी दवा खा रही हूँ फिर भी ठीक नहीं हो रही। और जब आप उसको होप देते हैं कि नहीं आप ठीक हो जाएंगे, तब उसको लगता है कि अच्छा ठीक है मैं ठीक हो जाऊंगी। तो जो होप देता है, लेकिन उसका बोलने का क्या तरीका है कि जब ये बीमारी मेरे को हुई है और ये ठीक नहीं हो रही है और मैं इतनी दवा खा रही हूँ तो मैं ठीक क्यों नहीं हो रही हूँ। ये लाइट डिजायर, ये भी एक तरह का एकोनाइट का लाइट डिजायर। ठीक है, और फियर सफोकेशन ऑफ एंड फियर कंपनी ऑफ। स्कूल में जब जाती है तो वहाँ लोग इसकी बीमारी के बारे में जानते हैं, तो इसका मजाक उड़ाने लगते हैं, तो वहाँ उसे बंद बंद घुटा घुटा सा लगता है, सफोकेशन लगता है कि यार कहीं ये लोग बोल ना दे, फिर मेरा मजाक ना उड़ाने लग जाए। तो इसलिए वो क्या करने लग गई, अलग कमरे में अपने क्लासरूम में ही बैठी रही। ठीक है, स्टाफ रूम में आती ही नहीं थी। तो ये फियर कंपनी, ठीक है, ऐसा नेचर बन जाता है। मरने का डर ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा होता है, लंबे समय तक जीवित रहने की इच्छा होती है। ठीक है ना, ये लाइट डिजायर। बीमारी में भी कहते हैं अभी मैं मरना नहीं चाहती, मेरी उम्र ही क्या हुई है, मुझे अभी बहुत सारे काम करने हैं। वो भीड़ भाड़ पसंद नहीं करती है, मतलब जहाँ पे सब ज्यादा लोग हैं वहां नहीं रहना है, क्योंकि उसको सफोकेशन फील होता है। इसलिए आप डायरेक्ट रिलीफ ले सकते हैं, जैसे लोग बोलते हैं ना, अब सब ज्यादा भीड़ होता है ना, मैं वहां से हट जाती हूँ, थोड़ा दूर जाके खड़ी हो जाती हूँ जहाँ थोड़ा खुला खुला होता है। এরকম পেশেন্ট যদি বলে তাহলেও আমরা এই भीड़ भाड़ पसंद नहीं है, करती है, ज्यादा लोग के बीच रहना नहीं चाहती, क्योंकि वहाँ उसे घुटन महसूस होता है, उसे लगता है कि उसका दम घुट जाएगा, और वो खुली हवा में जाना पसंद करती है। खुली खुली जगह उसे अच्छा लगता है, रहती है तो लोग उसका मन रखने के लिए संकोच बस हंसती रहती है। वो उसके बीच में बैठा, जब आ भी गई कभी स्टार्ट करने तो उसके साथ हंसती रहती है, वो लोग गप्पे मारे तो ये हंसती रहती है, उसके साथ तो वो नहीं चल रही है, क्योंकि अब चूंकि कंपनी में रहना है इसलिए, है ना, इसलिए चली जाती है कभी कभी, हंसती रहती है, पर वो किसी तरह से अपने आप को बचाने के लिए ऐसा करती है, अपने आप को सेफ दिखाने के लिए कि नहीं नहीं मैं आप लोग के साथ करती है। और हंसने में भी उससे तकलीफ का एहसास होता है, क्योंकि बंद वातावरण क्लोज जो बहुत क्लोज है, मैं यहाँ बैठूंगी फिर ये लोग शुरू हो जाएगा मेरे बारे में बात करना शुरू कर, तो वो उसके लिए क्या है, एक सफोकेशन है ना। आपके बारे में कोई गलत बात करे, गलत बात करे, एक साथ बैठ के आपके ऊपर जोक लगाए, तो कैसा लगता है, खराब लगता है ना, जब लगता है कि हट जाए। सफोकेशन ऐसा नहीं है कि अब यहाँ पे सांस रुक रहा है, सांस रुकता है तो हम कहाँ चले जाते हैं, खुले में चले जाते हैं, जो हमारे लिए मेरे हिसाब से वो एटमोस्फेयर नहीं है, वो नहीं रहना चाहिए, अच्छा नहीं लगता, कौन महसूस होता है, सफोकेशन फील होता है, तो हम वहां से निकल के खुले में जाते हैं, वही भीड़ में नहीं रहना चाहते, you know? কোনটা? ও আওয়াজ আসছে না? আচ্ছা আচ্ছা, কেন সিগন্যাল নাই না, মাঝে মাঝে সিগন্যাল কমজোর হবে। ঠিক আছে, আবার বলে দিচ্ছি, ওর ফিয়ার ডেথ অফ একটা রূপ হচ্ছে লাইট ফর এই সঙ্গে সঙ্গে চলে অ্যাকোনাইটে, এন্ড ফিয়ার সাফোকেশন অফ, ফিয়ার কোম্পানি অফ। যদি আমরা এই মহিলার সন্দর্ভে নিই যার ইউরিনের সমস্যা আছে, ঠিক আছে, তো কি বলছিল স্যার, আমার যখন তো ডাক্তার ঠিক হচ্ছে না, তাহলে যখন ওইটা ঠিক হচ্ছে না তো এই বিমারি তো আমাকে মেরে ফেলবে, ঠিক আছে,
আর আমি এই সময় স্যার আমার বয়স কত, ছোট ছোট বাচ্চা আছে, আমার বয়স এখন মারা বয়স হয়েছে, আমি মরতে চাই না, আমি বাঁচতে চাই। ঠিক আছে? আবার বোঝা যাচ্ছে না কিন্তু স্যার। হ্যাঁ, ওইটাই। আমি আমার তো এখন বোঝা যাচ্ছে না, বয়স, শোনা যাচ্ছে না। হ্যাঁ, আমার বয়সটা এখন কম আছে। হ্যাঁ, আর এই সমস্যা, ইউরিনের সমস্যাটা যদি ঠিক না হলো, তাহলে তো আমি মারাই যাবো না। শোনা যাচ্ছে? শোনা যাচ্ছে না, না? না না, এখন একদমই শোনা যাচ্ছে না। সিগন্যাল উইক হবে। তাহলে এই পাঠাই দিচ্ছি তো, ওই ভিডিওটা পাঠাই দিব না, ওটা দেখে নেবেন। ভিডিওটা দেখলে কোনো হবে না, হয়ে যাবে। ভিডিওতে আছে পুরো। ঠিক আছে? ভিডিও পুরোটা চলে আসবে, আপনারা ভালো মতন শুনতে পারবেন। ঠিক আছে? আসলো আওয়াজটা? আছে নাই? অফ করেন, আপনার মাইকটা অফ করেন, মাইকটা অফ করেন। ওই কানেকশনটা পুয়ার আছে, তাই জন্য সিগন্যাল ভালো নাই আপনার কাছে। হ্যাঁ, ওই ইয়ারফোন লাগাই নেন। এখন যখন আমি এই ভিডিওটা পাঠাই দিব না, আপনারা দেখতে পারবেন। ঠিক আছে? সব কথাটা আমি যে রেকর্ড করতেছি, সব কথা শোনা যাবে। ঠিক আছে? শুনে নেন শুধু। ফিয়ার ক্রাউডিং আর লাফিং স্মার্ট, মানে জবরদস্তি হাসি হাসি। কেন যদি আমি যাব না, ওনার সঙ্গে বসবো না, ওরা কি ভাববে? তাই জন্য ওখানে বসে থাকে, কিন্তু একটু হাসি দেয়, কিন্তু ওই হাসিটা যে হয় না, ও মন থেকে নাই, ওটা জবরদস্তি। আজকে, কালকে, হ্যাঁ, আজকে সকালে একটা পেশেন্ট, এটা আর একটা বলি, হ্যাঁ, আজকে একটা পেশেন্ট সকালে, মানে খুব অসুবিধা হচ্ছিল। হ্যাঁ, মাথা যন্ত্রণা, গলা ব্যথা, সর্দি লাগছে, মানে এসে একদম বেশ, কি বলবো, চেয়ারে বসতে, মানে बैठ भी नहीं रहा था वो चेयर में। ठीक है? ऐसे 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 कर रहा है, ऐसे ऐसे करके घूम रहा है, सर सांस में दिक्कत हो रहा है, सांस नहीं ले पा रहा हूँ, नाक बंद हो जा रहा है, सर दर्द कर रहा है सर, बहुत परेशान हूँ, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा है सर, कुछ कर लो, एकदम मेरे को बहुत খারাপ लग रहा है। এইরকম কথাটা বলছিল। ঠিক আছে? তো আমি রোগীটা কি কি নিলাম, আজকে দেখো একটা আর কেস করে নিচ্ছি। হ্যাঁ, মানে पेशेंट যে, মানে और उसका ना, उसको चैन नहीं है, एकदम छटपटाहट है, इधर उधर कर रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी इधर आ रहा है, हाथ ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, एकदम फटाफट इस तरह से। हाँ, तो क्या लिया है, एंग्विश ड्राइविंग प्लेस टू प्लेस विथ रेस्टलेसनेस, ये रूब्रिक लिया। हाँ, फिर दूसरा रूब्रिक लिया, एंग्विश रेस्टलेसनेस विथ एंग्विश टॉसिंग अबाउट, क्या कर रहा है, इधर उधर, पंखा डॉक्टर साहब थोड़ा तेज कर दो, गर्म है पंखा, धीरे है क्या, ऐसा। फिर डेथ एग्नी बिफोर डेथ, एकदम सांस रुक रहा है सर, क्या करें, क्या करें, है ना? मन में तो डर लग रहा है कि साला मर जाएंगे। बिफोर डेथ एगोनी, बिफोर डेथ, डेथ प्री सेंटिमेंट ऑफ फियर डेथ ऑफ, मरना भी नहीं चाहता है, फियर रेस्टलेसनेस विथ। ठीक है? तो इतना सारा रूब्रिक मिला के ना, एकोनाइट और आर्सेनिक आ रहा है, दोनों साथ साथ चल रहा है। 6-7 रूब्रिक लिया तो दोनों साथ साथ चल रहा है। ठीक है? तो यार, फिर आप डिफरेंस कैसे करेंगे एकोनाइट और आर्सेनिक में? चलिए थोड़ा सा हम लोग उसको भी कर लेते हैं, आज का पेशेंट का बात कर रहे हैं। हाँ, तो मैंने उसको एकोनाइट दे दिया। एकोनाइट में क्या होता है ना, मरने का डर होता है, और ये रेस्टलेसनेस आर्सेनिक में भी होता है, लेकिन वो आपको ना, पेशेंट जो है आपको छोड़ेगा,
आराम से बैठ के बोलेगा, और जो उसके साथ आया ना उसको बोलेगा ये दो, पानी दो मेरे को, ये लाओ वो लाओ, उसको परेशान कर देगा। आर्सेनिक का पेशेंट जो उसके साथ उसका अटेंडेंट है, तो क्लिंगिंग ए रूब्रिक अलग कर देता है इसको। क्लिंगिंग ग्रास्प एट अदर्स, और बड़ा सेल्फिश है, अपना चाहिए दार्शनिक को, मेरा काम होना चाहिए, मेरे को पानी लाओ, पानी नहीं दे सकता है। एक पेशेंट तो ऐसे बोल दिया कि हाँ तुम पानी, मेरे को मारना चाहता है इसलिए पानी नहीं, अपनी वाइफ को बोल रहा है कि वाइफ बगल में बैठी है और उसको बोल रहा है कि मेरे को मारना चाहते है तुम, जबकि बेचारे उसके, अब वाइफ कोई भी है वो जितना उसका दम है उतना दम से तो वो काम कर ही रहा है, लेकिन उसको बोलते अच्छा तुम मेरे को मारना चाहती है, इस तरह से बोल देना। ठीक है, तो हाँ वही बाइटिंग टम्बलर तो है ही है, लेकिन इस ढंग से बोलना ना कि आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उसको अपना उस समय केवल अपना जान बचाना। लेकिन एकोनाइट में ऐसा नहीं है, वो किसी को दूसरे को दोष नहीं दे, वो परेशान होगा इधर उधर, आपके सामने दिखेगा कि कितना परेशान है, उसमें इतनी घबराहट है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग कैसे रूब्रिक लेते हैं, उसका एक्चुअली एकोनाइट को क्या चाहिए, कैरिड डिजायर टू बी कैरिड एंड केयर्स। ठीक है, तो उसकी वाइफ क्या कर रही है, बैठिए तो बैठिए ना, ऐसे ऐसे उसके पीठ पे हाथ बांध रही है, धीरे 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 धीरे, लेकिन वो बोल रही थोड़ा जल्दी करो। हाँ, लेकिन उस पर गुस्सा नहीं कर रहा है वो। आर्सेनिक वाला क्या करेगा, जोर से नहीं कर सकता, ऐसा इसीलिए खाता पीता है, खाली खाने के लिए है तुम इधर, फिर वो खाना खिलाता रहूं मैं बस, इस तरह से गुस्सा करके आर्सेनिक वाला बोलेगा। वो बोलेगा थोड़ा जोर से कर दो, जोर से करो, थोड़ा सा पंखा जोर से हिला दो, कपड़ा से थोड़ा मेरा मुंह पोंछ दो, देखो कितना पसीना आ रहा है। तो कैरिड डिजायर टू बी कैरिड एंड केयर्स विथ कैरिड डिजायर टू बी फास्ट। क्यों, क्योंकि फियर सफरिंग है, तकलीफ से डर रहा है, इसलिए कैरी डिजायर टू बी फास्ट के साथ साथ क्या है, केयर भी करना है, आराम से करो। ये एकोनाइट का ये एकोनाइट का तरीका है अपने आप को सेफ करने। ठीक है, अच्छा, और एकोनाइट वो तो मैं बता दिया हूँ, एंजाइटी कोल्ड ड्रिंक शामिल, जब एकदम से घबरा जाता है ना, आप जो बात करते हैं ना उससे, अरे ठीक हो जाओगे भाई, क्यों परेशान हो रहे हैं, तो उसको ना वो कोल्ड ड्रिंक्स की तरह उसके एंजाइटी को कम करता है। ठीक है ना, एकोनाइट का पेशेंट को क्या, डॉक्टर अगर होप दे दे कि नहीं तुम ठीक हो जाओगे, तो उसके लिए ठीक है, वो ठीक हो जाएगा। ठीक है ना, আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি এটা ইউটিউবে পাঠাই দিচ্ছি আপনাদেরকে। হ্যাঁ, ঠিক আছে, এই ভিডিওটা বন্ধ করি।